যে কয়লা আমদানি হয়েছে 30খানা জাহাজে, এই কয়লা ভারতবর্ষে এসছে। এই 30খানা জাহাজে কয়লা আসার সময় যে ইন্দোনেশিয়া থেকে যে দামে কয়লা কেনা হচ্ছে, ভারতবর্ষে এসে সেই কয়লা দ্বিগুণ দামে বিক্রি করা হচ্ছে দাম দেখানোর ফলে কয়লার তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ব্যবহার করা হয়। সেই কয়লা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো চড়া দামে কিনে বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি করে এরা মানুষকে বোকা বানাচ্ছে এবং আদানির এই সেল কোম্পানি থেকে যে প্রফিট পাচ্ছে সেই প্রফিটটাও আদানির কোম্পানিতে চলে যাচ্ছে। আমরা প্রশ্ন করতে চাই, আজকে অমিত শাহ অনেক বড় বড় কথা বলবেন, আজকে তৃণমূল কংগ্রেসে যে জোট সেটাকে প্রমাণ করবেন, ঠিক আছে, কিন্তু নিজেরা যে জোট কত বড় জোট সেটা কিন্তু আমরা এখান থেকে দাঁড়িয়ে আমরা বলে দিচ্ছি যে ভারতবর্ষের 5টা স্টেটে নির্বাচন হলো, এই নির্বাচনে 5টা স্টেটে বিজেপিকে ভরাডুবি দিয়ে মানুষ কংগ্রেসকে আশীর্বাদ করছে। আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে ভারতবর্ষের ব্যাংকগুলোকে টুপি পরিয়ে হাজার হাজার কোটি টাকা ঘোটালা করে পালিয়ে গেল নীরব মোদী, মেহুল চোকসি, ললিত মোদী, বিজয় মালিয়ারা। আজকে নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ কোথায় গেলেন? আজকে তাদেরকে ধরে আনা তো দূরের কথা, একটা টাকা উদ্ধার করলেন না। ভারতবর্ষের ব্যাংকের এত কত হাজার হাজার কোটি টাকা আজকে নয় করে চলে গেছেন আজকে মেহুল চোকসিরা। আমাদের 3 নম্বর প্রশ্ন যে আমাদের যে বিজেপি রাজ্য দপ্তরে স্কিম লাগিয়ে নারদা কেলেঙ্কারি আপনারা দেখিয়েছিলেন যে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা মন্ত্রীরা যে টাকা নিচ্ছেন রুমালে জড়িয়ে, কেউ টাকা নিচ্ছেন, কেউ ক্যাশ টাকা নিচ্ছেন হাতে, কেউ ব্যাগ খুলে দিচ্ছেন, সেই টাকাগুলো করছে। আজকে আমরা প্রশ্ন করতে চাই, সেদিন কেউ বিজেপি রাজ্য दफ्तरे शुभेंदु अधिकारी দেখিয়েছিলেন। गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब। आप देख रहे थे लोकल जर्नलिस्ट, मैं आपके साथ मुशर्रफ खान। और इस वक्त हम लोग मौजूद है इंदिरा गांधी स्टैचू के ठीक सामने और आशुतोष मुखर्जी रोड पर। और आपको बता दूं यहाँ कांग्रेस कमेटी की तरफ से यहाँ एक प्रोटेस्ट की रैली निकाली गई है। वो बता दूं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, अभी जो है बीजेपी का एक प्रतिबद्ध सभा चल रहा है किसी दास के विक्टोरिया हाउस के ठीक सामने, जहाँ बहुत सारी भीड़ है। अमित शाह होम मिनिस्टर आने की बात है, उसी रैली के जो है प्रतिवाद में भी प्रोटेस्ट करने के लिए आज यहाँ कांग्रेस कमेटी, आप देख सकते हैं दक्षिण कोलकाता जिला की जो कांग्रेस कमेटी उनकी तरफ से आज यहाँ रैली निकाली गई है। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ प्रतिवाद किया जा रहा है। बहुत सारी बातें जो है यहाँ पे, ये देखते हैं इस रैली में किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। দিল্লিতে ক্ষমতায় আছেন, মানুষ তো আপনাকে দুহাত পড়ে দুটো টার্ম দিয়ে আপনাকে নির্বাচিত করেছিল, যে নির্বাচিত করে নরেন্দ্র মোদী আজকে প্রধানমন্ত্রী আর অমিত শাহ আজকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তাহলে আপনারা সারা ভারতবর্ষের মানুষকে 450 টাকার গ্যাস সিলিন্ডার দিতে কে বারণ করেছে? আপনার রাজস্থানের মানুষকে দিন, মধ্যপ্রদেশের মানুষকে দিন, কিন্তু বাংলার মানুষও চাইছে 450 টাকার গ্যাস সিলিন্ডার। আপনি কার্যকর করুন। আমরা অমিত শাহের কাছে, এটা আমাদের তৃতীয় প্রশ্ন। আমাদের চতুর্থ প্রশ্ন যে নরেন্দ্র মোদী বিজেপি মণিপুর অশান্ত হয়ে 6 মাস ধরে, আজকে 6 মাসের বেশি হয়ে গেল। মণিপুর একটা ভারতবর্ষের অঙ্গরাজ্য, এই অঙ্গরাজ্যতে মণিপুর চলছে। মণিপুরের দুটো জাতির দাঙ্গা হচ্ছে। আজকে নরেন্দ্র মোদী সেখানে কোথায়? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যেখানে যাওয়ার কথা, মণিপুরে আজকে কোথায় গেলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী? আজকে মণিপুরে মা বোনদের উলঙ্গ করে ধর্ষণ করে রাস্তায় ঘোরানো হচ্ছে। আমরা প্রশ্ন করতে চাই অমিত শাহজিকে যে আপনি মণিপুরে গেলেন না কেন? কলকাতার মতো শান্ত জায়গায় এসে আজকে আপনি আমাদেরকে পশ্চিমবাংলাকে পছন্দ করার চেষ্টা করছেন। আজকে মণিপুরকে গিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করুন। কেন নরেন্দ্র মোদীজি একবারও মণিপুরে গেলেন না? কেন মণিপুরে সরকারকে বরখাস্ত করলেন না? কেন মণিপুরে 356 ধারা জারি করে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করলেন না? কেন মণিপুরে জাতি দাঙ্গা বন্ধ করার চেষ্টা করলেন না? আমরা ধিক্কার জানাই এবং প্রশ্ন করতে চাই অমিত শাহর কাছে। আমরা অমিত শাহর কাছে প্রশ্ন করতে চাই, দেশের মহঙ্গাই চরম সীমায় পৌঁছেছে। দেশে বেরোজগার স্বাধীনতার পরে 45 বছর 60 বছর এত বড় বেরোজগারি ভারতবর্ষের বুকে আর কখনো দেখা যায়নি। এই বেরোজগারি দূর করতে, মহঙ্গাই দূর করতে আজকে অমিত শাহর কি ভূমিকা আছে আমরা প্রশ্ন করতে চাই।
আজকে আমাদের দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আজকে আমাদের অবস্থান, এই অবস্থানে আমরা আছি। কিন্তু আমরা কখন আমরা বেরিয়ে যাব? আমরা অমিত শাহর দিকে, অমিত শাহ ঢুকলেই আমরা এখান থেকে রওনা হব অমিত শাহর মিছিলের দিকে, মিটিং এর দিকে। প্রশ্ন করতে চাই, এই 5টা প্রশ্ন আমরা করতে চাই। আমাদের মধ্যে उपस्थित আছেন প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক। जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ वक्त के बाद जो है ये प्रोटेस्ट रैली अमित शाह की जो बीजेपी वाली जो रैली है वहाँ जो प्रतिभा शो वहाँ जाने वाली है। और जितनी सारे सवालों को आपने अभी सुना वो सारे सवालों के जवाब जानने के लिए उनसे बात की जाएगी। শওকত আলী সিদ্দিকী, আবু নাসের, শাহজাহান দেওয়ান থেকে ছাত্র পরিষদ কলকাতা জেলার সভাপতি আমাদের দেবজ্যোতি দাস, যুব নেতা আত্মজ্যোতি মিত্র থেকে শুরু করে মহিলা কংগ্রেসের প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা জিবি গুঞ্জা, সুপ্রিয়া দাস এবং আমাদের অর্চনা প্রকাশ থেকে শুরু করে রীনা আছেন, আমাদের মহিলা কংগ্রেসের নেতৃত্বে আছেন আমাদের দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেসের বিভিন্ন ব্লকের সভাপতিরা আছেন লড়াকুর নেতৃত্বরা। আজকে আমাদের এই মিটিং এ আরো সবাই দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেস থেকে নেতৃবর্গ আসবেন, আমরা তাদের জন্য অপেক্ষা করছি। এরপর বক্তব্য রাখবেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। নাম ডাকা হয়েছে। আচ্ছা, ইন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক ইন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি। বল আমি আবার বলবো। জুতোটা খুলে না, জুতোটা খুলে না। জুতোটা খুলে না। এখন যদি লালবাড়িয়া অ্যারেস্ট করে তো জুতো খুলবে না। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ साउथ कोलकाता डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस की तरफ से यहाँ क्वेश्चंस की जो है एक पत्र बनाई गई है, आप देख सकते हैं। और इसी कोई काम नहीं किया जा रहा है, इन सब में ध्यान क्यों यहाँ पर जारी की गई है। আমি হচ্ছি রাজ্য মহিলা কংগ্রেসের জিএস। আচ্ছা, নিয়ালিপুর পেট্রোল পাম্পে আজকে একটা যে প্রোগ্রাম রেখেছি 4টের সময়। 40,000 কোটি টাকার কেলেঙ্কারি কয়লা আমদানি হয়েছে। ইন্দোনেশিয়া থেকে যে কয়লা এসেছে সেই কয়লা ভারতবর্ষে এসে দ্বিগুণ দামে, চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে। ভারতবর্ষে কয়লা মজুদ প্রচুর পরিমাণে, তা সত্ত্বেও আমরা কয়লা আমদানি করার জন্য ইন্দোনেশিয়াকে আমরা আদানিকে বরাদ্দ দিয়েছি। এবং সার্কুলার দিয়েছে নরেন্দ্র মোদী, প্রত্যেক যারা কয়লা ব্যবহার করে সে সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে 10% কয়লা আদানির কাছ থেকে কিনতে হবে। এটা বড় কেলেঙ্কারি, আমরা বিরাট তদন্ত চাইছি। এটা নরেন্দ্র মোদী সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি, এই কয়লা কেলেঙ্কারি নিয়ে আপনারা একটা তদন্ত কমিশন তৈরি করুন, সুপ্রিম কোর্টের কর্মরত বিচারপতিকে দিন। 2 নম্বর হচ্ছে যে আপনারা যে খাদ্য দপ্তরে নারদা কেলেঙ্কারি স্ক্রিনে দেখিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী টাকা নিচ্ছে, তাহলে তৃণমূল কংগ্রেসের সারদা অভিযুক্ত সবাই গ্রেপ্তার হল, তো শুভেন্দু অধিকারীকে গ্রেপ্তার করা হবে না কেন? শুভেন্দু অধিকারীকে দেখা যাচ্ছে টিভিতে যে উনিও ডুমালে মোটে টাকা নিয়েছেন, ত্যাগ যাত্রা কৃতজ্ঞ বলা হবে কেন? একটা মানুষের আইনের দুজনকে দুরকম আইনের ধারা হতে পারে না, সবাই গ্রেপ্তার হবে, শুভেন্দু অধিকারী হবে না কেন? 3 নম্বর যে আপনারা দেখেছেন বিজয় মালিয়া, ললিত মোদী, মেহুল চোকসিরা হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যাংক জালিয়াতি করে পালিয়ে গেছে, এদেরকে ফিরিয়ে আনার কি করলেন নয় অমিত শাহজি? টাকা কোথায় গেল? এই ভাগুড়েগুলোকে ধরে নিয়ে আসা হলো না কেন? আমরা 5টা প্রশ্ন আমরা অমিত শাহজিকে করেছি আপনাদের মাধ্যমে, যে আপনারা ইমিডিয়েট এই 5টা প্রশ্নের উত্তর আমাদের দিন। পশ্চিমবাংলায় এসছেন, অনেক বড় বড় কথা বলবেন, সারা দেশের মধ্যে যে বিজেপিকে নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর নেতৃত্ব। আজকে পশ্চিমবাংলার স্বীকৃত মানুষের বাস বিজেপির মুখোশ খুলে দেবে। 3 তারিখের পরে বিজেপির মুখোশ পশ্চিমবাংলা থেকে বিজেপি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এটাই তার জন্য আমরা অমিত শাহজিকে প্রশ্ন করার জন্য আমরা এখানে বসেছি। অমিত শাহজি আসুন, আমরা ওয়েট করছি, আমরা যাবো অমিত শাহজির কাছে এই 5টা প্রশ্ন উত্তর জিজ্ঞেস করছি।
পুলিশ যদি আটকে তাহলে কি আপনারা পুলিশ যেখানে আটকে আমাদের যদি যেতে যদি না দেয় তাহলে আর কি করে যাবে? আমরা চেষ্টা করবো যাওয়ার অমিত শাহজির কাছে। কলকাতায় কেন বেছে নিলেন? কলকাতা আজকে অমিত শাহজি এসছে, হ্যাঁ, তাই কলকাতায় আমাদের বিক্ষোভ। আমাদের যদি কলকাতা বাদ দিয়ে যদি অন্য কোনো জায়গায় যেত সেখানেও কংগ্রেস একই প্রশ্ন করে। দেশে তো অনেক জায়গায় অশান্তি হচ্ছে, সেখানে না বেছে কলকাতায় কেন বেছে দেশে নিলেন? আমরা তো চাইছিলাম যে অমিত শাহজি নরেন্দ্র মোদীজি মণিপুরে যাক। রাহুল গান্ধী তো বারবার করে বলছে যে দেশের একটা অঙ্গ রাজ্য মণিপুর। মণিপুর তো আমাদের দেশের বাইরে নয়। মণিপুরে যখন মা বোনেরা আজকে উলঙ্গ করে রাস্তায় ঘোরানো হচ্ছে, মণিপুরে যখন জাতি দাঙ্গা হচ্ছে, তো মণিপুরে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন? কোথায় গেলেন? অমিত শাহজিকে বলছি কলকাতা শান্ত, আপনি মণিপুরে গিয়ে মানুষকে শান্ত করুন। মণিপুরে গিয়ে আজকে মণিপুরের সরকারকে বরখাস্ত করুন, মণিপুরের রাজ্যপালকে বরখাস্ত করুন। মণিপুরে যে আপনি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল, আপনারা ওখানে কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত করুন। আপনি সেখানে না গিয়ে তাহলে পশ্চিমবাংলায় কি করতে আসছেন? আমরা অমিত শাহজিকে আমাদের এইটা আমাদের চতুর্থ প্রশ্ন ছিল। পঞ্চম প্রশ্ন হচ্ছে বেরোজগার এবং যে মেহঙ্গাই বিরুদ্ধে আপনাদের কি ভূমিকা আছে? আর দেশের সর্বোচ্চ বেরোজগার এখন এই মোদির আমলে হয়েছে, অমিত শাহর আমলে হয়েছে। আজকে মেহঙ্গাই চরম পর্যায়ে পৌঁছে। আজকে এই ব্যাপারে আপনার কি ভূমিকা আছে প্রশ্ন করতে চাইছি। এই 5টা প্রশ্ন নিয়ে আমরা যাবো অমিত শাহ। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়ে সব জায়গায় গিয়ে বলছে যে গ্যাসের দাম 450 টাকা করে দেবো আমরা নির্বাচনে জিতলে। আজকে আমরা প্রশ্ন করতে চাই, আপনারা দুবার নির্বাচিত কেন্দ্রের সরকার আছে, মোদী সরকার, আপনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, আজকে আপনি কেন 450 টাকা গ্যাসের সিলিন্ডার সারা ভারতবর্ষের মানুষকে সাপ্লাই করবেন? কেন বাংলার মানুষকে করবেন না? কেন কলকাতার মানুষ 450 টাকা গ্যাস পাবে না? আজকে আপনারা লাগবে সবকিছু আবার চাইলে আমি পেয়ে যাবো। তো আপনাদের এই যে বিক্ষোভটা দেখানো হয়েছে, এর মূল কারণগুলি কি? আমাদের মূল কারণ আছে কি, আজ আমরা ইন্দিরা গান্ধীর স্ট্যাচুর সামনে বসে আছি। কেন বসে আছি? মণিপুর জ্বলছে, ভারতবর্ষের একটা অঙ্গ মণিপুর জ্বলছে। আর অমিত শাহ যখন 5 রাজ্যে ইলেকশন হলো তখন ছত্তিশগড়, আপনার মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানে বলল ওইখানে ও আবার মিথ্যে কথা বললো কি ওইখানে 450 টাকায় গ্যাস দেওয়া হবে। তা আমাদের বাংলা থেকে 22 জন এমপি এখান থেকে বিজেপিকে দিয়েছে। তো আমরা বাংলার মানুষ কি অপরাধ করেছি? বাংলা মানুষ তো কিছু অপরাধ করেনি। যদি আপনাকে গ্যাস দিতে হয়, আমাদের গ্যাসে বারণ নেই, লেকিন সারা ভারতবর্ষে 450 টাকায় গ্যাস দিতে হবে। আপনি খালি এখানে এসে জুমলাবাজি করবেন আর এখানে এসে মানুষকে ভুল বোঝাবেন। এই ভুল বোঝানো আর আপনার চলবে না। কেন কি মানুষ এখন সব মানুষ জেনে নিয়েছে। আপনি ভালো করে জানেন 3 তারিখে আমাদের 5টা রাজ্যে যে ভোট হলো, 5টা রাজ্যে মানুষ बीजेपी उत्थान करेছে, भगा दिया। इसके खातिर में बंगाल में हम लोग चाहते हैं कि अमित शाह जो आज मीटिंग कर रहा है ये फ्लॉप होगा। ये सब पैसा देकर, रुपया पैसा देकर भीड़ को बुलाया गया है। ये जनता इसको उत्थान कर दिया है। 3 तारीख को आपको मालूम हो जाएगा कि 3 तारीख को क्या रिजल्ट होने वाला है। सारा भारत भर झूम उठेगा। 2024 में हम लोग का कांग्रेस का सरकार आएगा, जिसमें हर नौजवान, जितने भी किसान है, माँ बहन है, सब आनंद में झूम उठेंगे। जो वादा की है प्रियंका गांधी ने कि महिला को सुविधा मिलेगा, किसान को माफ किया जाएगा कर्जा, और महिला लोग को 15,000 रुपया सालाना मिलेगा। ये हम लोग खुद नहीं बोल रहे, हमारा सुप्रीम जो ऊपर में है वो ऐलान किए हैं कि 15,000 रुपया महिला को मिलेगी, और किसान को जो कर्जा किसान के ऊपर में है 5-5 लाख का, 6-6 लाख का, वो पूरा माफ होगा। और 500 रुपया गैस होगा, 200 यूनिट फ्री होगा, और देश में नौजवान का नौकरी चाकरी सब होगा। हम लोग एक ही बात बोलेंगे, लौटा दो पुराने दिन, लौटा दो पुराने दिन। जय हिंद कांग्रेस, जय हिंद कांग्रेस। और हम लोग यही बोलने चाहते हैं कि वो लौटा दे हम लोग का दिन, जो दिन हम लोग का
ले लिया था मोदी ने, दिखाया था जुमलाबाजी करके कि सरकार मोदी के आने के बाद में बहुत कुछ होगा। नहीं, हम लोग को पुराना दिन लौटा दे जिसमें हम लोग खुश थे, भारतवर्ष का इंसान हम लोग खुश थे। वो दिन हम लोग को फिर से 2024 में चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। शुक्रिया आपका। सर, ये जो प्रोटेस्ट यहाँ चल रहा है और वहाँ भी एक प्रतिवाद सभा चल रहा है, तो ये दोनों रैलियाँ एक दिन में हो रही है और यहाँ उसके कारण प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तो क्या लगता है ये प्रोटेस्ट सफलता की तरफ जा रहा है? देखिए, अमित शाह यहाँ पर आए, होम मिनिस्टर यहाँ मगरबी बंगाल तशरीफ लाए। होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मगरबी बंगाल में एक करप्शन चल रहा है, कोयला का बहुत बड़ा यहाँ पर करप्शन चल रहा है, कोयला चोर है यहाँ। टीएमसी के मंत्री कोयला चोर, सरकार चोर, और यहाँ पर विभाग पूरा कोयला चोरी में, कोई बालू चोरी में, कोई गोरू चोरी में, माने पूरा मगरबी बंगाल चोर का, करप्शन का एक प्रदेश बन चुका है। तो ऐसे प्रदेश के खिलाफ जब ओंकार अमित शाह अगर बोलते हैं तो उनके खिलाफ कांग्रेस भी बोलती है कि एक तरफ मगरबी बंगाल में अगर कोई कोयला चोर है, बालू चोर है, गोरू चोर है, तो ठीक पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई सबसे बड़ा नेशनल लेवल में करप्शन पैदा कर रहा है तो मोदी सरकार है। और मोदी सरकार के अदानी और अंबानी के साथ कौन लोग सांठगांठ कर रहे हैं। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट के अंदर में तमाम बातें उजागर राहुल गांधी जी ने कर दिया था। और आपको पता है अदानी का शेयर कहां से कहां गिरा था और कितने लोग बर्बाद हो गए थे। ये मॉरिशस के साथ सांठगांठ क्या है अदानी का, 20,000 करोड़ विदेश से जो अदानी के कंपनी में आया है उसका अभी तक खुलासा अदानी जी ने नहीं किया है। ये सवाल तो राहुल गांधी जी का है। आज अदानी जी जिस तरह से कोयला के अंदर में करप्शन चल रहा है, जिस कोयला चोरी के बारे में मगरबी बंगाल प्रदेश कांग्रेस के खिलाफ अहंकार भर रहे हैं, हुंकार भर रहे हैं अमित शाह जी, आज नेशनल लेवल पर अदानी जी वही कोयला चोरी कर रहे हैं जो कोयला के अंदर में करप्शन हो रहा है। और कोयला जो इंडोनेशिया से सस्ता आता था, चाइना से सस्ता आता था, आज वही कोयला कहां से आ रहा है और भारी मात्रा में आ रहा है और ऊंचे दाम में आ रहा है। हमारा सवाल वही है। आज हिंदुस्तान में हर जन सवाल उठा रहा है कि आज आप इलेक्शन के 5 राज्यों के इलेक्शन में आपने अपने मैनिफेस्टो में आपने घोषणा किया है कि हम 450 रुपया गैस सिलेंडर जीतने के बाद तमाम राज्यों को देंगे, तमाम 5 राज्यों के देंगे। लेकिन हमारा सवाल है, मगरबी बंगाल का नागरिक होने के नाते मैं सवाल करना चाहता हूं कि मगरबी बंगाल की आवाम को 450 का गैस कब मिलेगा। अब 2024 का विदाई का समय आने जा रहा है, अब तो उनका विदाई होने जा रहा है, अब तो उनका 10 साल का म्याद पूरा होने जा रहा है। आज वो 450 का लॉलीपॉप की घोषणा कर रहे हैं उन राज्यों में जहां पर इलेक्शन चल रहा है। सिर्फ HP रसोई गैस की बात नहीं है। आज उन्होंने इलेक्शन में आने के बाद, जीतने के बाद उन्होंने क्या वादा किया था 2014 में, सत्ता में आएंगे बेकार लोगों को 2 करोड़ रोजगार मुहैया कराएंगे, 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी। आज 10 साल हो गए, 10 साल में कम से कम बेकार नौजवानों को 20 करोड़ बेकार नौजवानों को रोजगार मिलने की बात थी। लेकिन अब उनका विदाई का समय आया है तो सवाल कांग्रेस पूछ रही है कि 20 करोड़ आपने बेकार नौजवानों को रोजगार दिया है या नहीं दिया है। प्रश्न वहां पर खड़ा होता है, प्रश्न खड़ा होता है। आप जब कह रहे थे कि गैस सिलेंडर का दाम 400 रुपया जब मनमोहन सिंह के जमाने में था तो कम होना चाहिए, बहुत ज्यादा है, तो आज 1200 रुपया के करीब करीब गैस सिलेंडर कैसे पहुंचा? कहां पर आपका सांठगांठ था? किसके साथ सांठगांठ था? इतना रुपया जो डिफरेंस का रुपया है किसके जेब में जा रहा था? सवाल ये भी है। अच्छे दिन आएंगे, आपने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। हम तो कहते हैं कि हमारे पुराने दिन ही लौटा दो, मनमोहन सिंह का जमाना ही लौटा दो। आपने ये भी कहा था कि हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपया आएगा। आज 10 साल हो गए, हर व्यक्ति जनधन योजना के तहत अपना खाता खुलवाया था, 0 बैलेंस में खुलवाया था। हर व्यक्ति इंतजार कर रहा है कि हमारा 0 बैलेंस के खाते में 15-15 लाख रुपया आएगा। जनधन योजना के तहत भी 15 लाख रुपया भी नहीं आया और उल्टा
उन खाता ग्राहकों से बैंक ने चार्ज किया है, जीरो बैलेंस के नाते उनको इतना चार्ज किया है कि आज 350 करोड़ रुपया पूरे हिंदुस्तान से बैंकिंग सिस्टम ने उनसे वसूला है, ग्राहकों से वसूला है। ये एक जो करप्शन चल रहा है, ये जो मिली भगत चल रही है, ये किसके लिए? हम दो हमारे दो के लिए काम चल रहा है। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ हम दो और हमारे दो के लिए काम चल रहा है। एक तरफ मोदी है, एक तरफ शाह है और दूसरी तरफ अदानी और अंबानी है। इसके लिए ही पूरा देश चल रहा है। आज सवाल पूरे देश की आवाम, पूरे देश की नागरिक अमित शाह और मोदी जी से पूछ रहे हैं, क्या है देश किसके लिए काम कर रहा है? महंगाई चरम सीमा पे है, लोग परेशान हाल है, महिलाएं अपना बजट नहीं कर पा रही हैं, किचन फेल हो चुका है, किसान को आपने दुगनी आमदनी देने की बात की थी कि हम आएंगे, हमारी सरकार आएगी, हम दुगना आमदनी आपको देंगे। आज उनको उनका मूल्य नहीं मिल रहा है, दुगनी आमदनी तो दूर की बात। यही है भारतवर्ष का चित्र। आने वाला समय 3 तारीख को आपको पता चलेगा। इन 5 राज्यों में बीजेपी की जिस तरह से शिकस्त होगी, बीजेपी की जिस तरह से हार होगी, पूरा हिंदुस्तान का ये सेमीफाइनल इस दिशा और दशा दिखाएगा पूरे भारत को। और 2024 ये बताने के लिए काफी होगा कि 2024 में किसकी सत्ता विराजमान होने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। क्या कहेंगे सर, आज इस तरह से जो यहाँ प्रोटेस्ट की जा रही है और वहाँ भी एक रैली चल रहा है, आप लोगों को जो क्वेश्चंस है वो सारे आप लोगों को पूछने के लिए वहाँ जाने वाले हैं, क्या लगता है किस तरह से सफलता की तरफ जाएगा ये रैली? ये जो केंद्रीय सरकार है उनका जो स्वराष्ट्र मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों बेकार है। ये दोनों जब से हिंदुस्तान का ये भाजपा सरकार आए, आप देखिए एक एक हिंदुस्तान बर्बादी में जा रहा है। हिंदुस्तान का कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। ये कोरोना से शुरुआत हुआ था, अभी तक चल रहा है। तो इंसान कहाँ बचेगा? ये जो स्वराष्ट्र मंत्री है झूठ बोलता है, प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। हिंदुस्तान को कौन नौजवान का क्या स्थिति है मेरे को बताइए। मणिपुर जल रहा है, नंगा करके घुमा रहा है। स्वराष्ट्र मंत्री आके भाषण दे रहा है बंगाल कैसे वो लोग सरकार बनाए। लाज लगना चाहिए। 5 राज्यों में जो चुनाव होगा ना, बर्बादी देखेंगे। आने वाला दिन में हिंदुस्तान का आम जनता सोच लिया ये बेकार प्रधानमंत्री है, ये अपया प्रधानमंत्री है, ये बनावटी प्रधानमंत्री है और उसका साथ उसका मेन सहयोगी अमित शाह है, जो जिसका विरोध में बहुत आरोप है। वो स्वराष्ट्र मंत्री है, वो आ रहा है, वो आसाम जा रहा है। असम का चीफ मिनिस्टर वो भी सरदा में फंसा हुआ है। इधर अपने विरोधी दलों नेता जिसको बनाया, कहाँ उन्होंने स्वच्छ भारत का बात करे। अमित शाह जी ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि तेलंगाना में अगर वो इलेक्शन जीतते हैं तो लोगों को राम मंदिर फ्री में ले जाएंगे। क्या एक चीज बताएगा, मंदिर मस्जिद करके कुछ नहीं होगा। ये सुरंग में जो 41 जो श्रमिक रुक गया था, कोई हमारा गौ माता का जो यूरिन उसको देखे तो निकालने का संभव नहीं हुआ ना। मंदिर मस्जिद का नाम करके तो निकालने का संभव नहीं हुआ। विज्ञान का जरूरत पड़े, इंसान का जरूरत पड़े। ये मंदिर मस्जिद का नाम पर शमशान कब्रिस्तान को जो बांटने का काम कर रहा है, ये हिंदुस्तान को जो बर्बाद करने का काम है, इसको हमको रुकना चाहिए। हिंदुस्तान को जनता को बताना चाहिए जे कपड़ा, मकान, रोटी, रोजगारी, भोजन ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हिंदुस्तान में। जो आज अनएम्प्लॉयड है उसका बारे में क्या बताएंगे? आज जो हंगर इंडेक्स में हिंदुस्तान कहाँ है? 55 में था। हम लोग जब सरकार में था 2014 में, हम लोग सरकार से जब गया तब हिंदुस्तान का जो लोन था वो लोन था 55 लाख करोड़ का। आज 155 लाख का, 100 बढ़ गया है। क्या बात कर रहा है ये लोग? झूठा स्वराष्ट्र मंत्री, झूठा प्रधानमंत्री है जो हिंदुस्तान को बेच रहा है। आप बताइए ना, आप लोग जो चैनल में काम करते हैं, ये चैनल जो लोग चलाता है, सब गदी मीडिया जो बहुत चैनल है, सबका सैलरी स्ट्रक्चर क्या है? 2, 4, 5 छोड़ के हिंदुस्तान में आज जो नौजवान नौकरी करने जा रहा है, कितना सैलरी मिल रहा है?
तनख्वाह कितना मिलता है, गरीब का क्या स्थिति है, उसको लेके कोई बात नहीं है, मरीज को लेके कोई बात नहीं है, दवाई को लेके कोई बात नहीं है। हम लोग सरकार में नहीं है, केंद्रीय सरकार में नहीं है, बंगाल में नहीं है। गैस का दाम कितना है, पेट्रोल का दाम कितना है, क्यों बेकारी है, बताइए। आज ये कारण है जो अमित शाह आके जो बात बोल रहा है ये गलत है। अभी जो पता चल रहा है कि शुभेंदु अधिकारी को विंटर सेशन से भी खारिज कर दिया गया है, तो क्या लगता है कि देखिए, बात करने का अधिकार सबको देना चाहिए। जैसा अमित शाह को बंगाल में आके मीटिंग करना चाहिए, कोई रुकना नहीं चाहिए। ये दिखाने चाहिए हिंदुस्तान सबके लिए है। हिंदुस्तान को बर्बाद करने का काम जो लोग कर रहा है, हिंदू मुसलमान जात का राजनीति, इसमें हटना चाहिए। बट स्वराष्ट्र मंत्री जब बंगाल में आ रहे हो, मणिपुर में जाओ, क्यों नहीं जाते हो? जो हमारा जो घर का लड़की को नांगा घुमा रहा है, उसमें आपका क्या बात है? प्रधानमंत्री भी खामोश है, एक दिन भी नहीं गया। खेल देखने के लिए माठ में जा रहे हो, अच्छा है, पर मणिपुर में तो भी जाना चाहिए था। वही बात हम लोग बोल रहे हैं, स्वराष्ट्र मंत्री आपका क्या काम है? अरे बंगाल का चुनाव तो 26 में है, चुनाव तो 26 में है, तो अभी से आके क्यों विभाजन का राजनीति, दंगा का राजनीति क्यों कर रहे हो? इसका प्रोटेस्ट है। चल रहा है ना? सबसे पहले जिस तरह से यहाँ प्रोटेस्ट किया जा रहा है आप लोगों को जोर शोर से, और आज वहाँ पर जो है अमित शाह भी आने वाले हैं, तो क्या लगता है ये प्रोटेस्ट किस हद तक कामयाब होगा? देखिए, हम लोगों का एक सवाल है अमित शाह से कि आज मणिपुर भी हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। मणिपुर में हमारी माँ बहनों के साथ में जिस तरीके से दरिंदगी किया गया, वहाँ पर मोदी सरकार का कोई भी नेता मंत्री ना गया है, ना प्राइम मिनिस्टर गया, ना होम मिनिस्टर गया। होम मिनिस्टर का पूरा पुलिस पूरे तरीके से विफल था मणिपुर में, और बंगाल में आकर के ये लोग सुरसुरी देने का कोशिश कर रहे हैं। तो बंगाल में ये सांप्रदायिक चीज जो है, बीजेपी जो धर्म का राजनीति करता है, वो धर्म के राजनीति में पश्चिम बंगाल के लोग न कभी आए थे, न कभी आएंगे। और दूसरा हम लोगों का सवाल है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से बीजेपी 2021 के चुनाव में, 2016 के चुनाव में बीजेपी ऑफिस से स्टिंग ऑपरेशन करके दिखाया गया कि नारदा में किस तरीके से नेता लोगों को पैसा लेते हुए देखा गया, लेकिन उस नारदा कांड में फिराद हकीम और भी बहुत सारे नेता मंत्री हैं जो नारदा केस में अरेस्ट हुए, लेकिन शुभेंदु अधिकारी को अभी तक क्यों छोड़ दिया गया है? शुभेंदु अधिकारी को क्यों अरेस्ट नहीं किया गया? बीजेपी का एक तरफ में ईडी सीबीआई क्या सिर्फ विरोधी दल के ऊपर में अत्याचार करेगा, विरोधी दल के घर में छापामारी करेगा? शुभेंदु अधिकारी का भी नाम शारदा कांड में था, शुभेंदु अधिकारी का नाम नारदा कांड में था। आज अमित शाह के साथ में वहां पर शुभेंदु अधिकारी को आप देखने पाएंगे। तो नारदा में जो लोग घूस लिए हैं, सबको जब जेल हुआ, सबको जब लॉकअप हुआ, शुभेंदु अधिकारी को क्यों छोड़ दिया गया है? ये हम लोगों का दाबी है। दूसरा, कांग्रेस का सरकार जिस स्टेट में है, उन सब जगहों पर हम लोग 400 रुपया, 450 रुपया गैस सिलेंडर दे रहे हैं। तो बीजेपी का सरकार जहां जहां पर है, वहां पर अमित शाह को घोषणा करना चाहिए कि वहां पर भी 400 रुपया गैस सिलेंडर का दाम होगा। हम लोग अब कांग्रेस का सरकार जहां जहां पर है, महिलाओं को 3000 रुपया महीना दिया जा रहा है, बेकार लोगों को 6000 रुपया महीना दिया जा रहा है। इन सब चीज को लेकर के आज हम लोग इंदिरा गांधी जी के स्टैचू के सामने में हम लोग ये प्रतिवाद कर रहे हैं, और अमित शाह को हम लोग गो बैक कर रहे हैं कि अमित शाह जो सांप्रदायिक एक नेता है, यहाँ पर आकर के पश्चिम बंगाल में भाई को भाई से लड़ाने का काम करने के लिए ये लोग आया है, और उसके खिलाफ में थोड़े ही दूर में यहाँ से डोरीना क्रॉसिंग है, लेकिन उनके सामने में हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और बीजेपी का कोई भी नेता मंत्री का ताकत नहीं है कि यहाँ पर आकर के हम लोगों को उठा दे या हम लोगों से लड़ाई में आ जाए, क्योंकि पश्चिम बंगाल कभी भी सांप्रदायिक राजनीति को ना बर्दाश्त किया है, ना करेगा। अमित शाह से एक ही सवाल है कि नारदा का चोर, शारदा का चोर शुभेंदु अधिकारी को क्यों नहीं ईडी सीबीआई अरेस्ट कर रहा है? क्या सिर्फ
विरोधी दल के ऊपर में ईडी सीबीआई काम करेगा? ईडी सीबीआई बीजेपी का कठपुतली है। बीजेपी जिस तरीके से नचाता है उस तरीके से बीजेपी का पपेट बन चुका है ईडी और सीबीआई। इसके खिलाफ में आज हम लोग दक्षिण का कितना ताकत है ये कांग्रेस पार्टी देख लेगा और आने वाले दिन बीजेपी होशियार 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 चोर चोर बीजेपी एक इंटरव्यू दे दिया চলো বসে নিচ্ছি বসে নিচ্ছি বন্দে মাতরম क्या लगता है सर आज इस तरह का जो प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे हैं जोर शोरों से कितनी हद तक आज साउथ कोलकाता डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के ओर से आज इंदिरा गांधी मूर्ति का सामने में हम लोग अवस्थान करके हम लोग अमित शाह जी को 5 प्रश्न আমরা पूछने मांगते हैं। আমি বাংলায় বলছি যে আমরা পশ্চিম বাংলায় শান্ত পশ্চিম বাংলায় অমিত শাহ আসছে আজকে মিটিং করতে। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে ভারতবর্ষের একটা অঙ্গরাজ্য মণিপুর, সেখানে মণিপুর জ্বলছে, সেখানে আপনি মণিপুরে যাচ্ছেন না, আপনার প্রধানমন্ত্রী যাচ্ছেন না। মণিপুরে মা বোনেদের ইজ্জত নিয়ে টানাটানি চলছে, মণিপুরে একটা জাতি দাঙ্গা হচ্ছে, 6 মাস ধরে বেশি হয়ে গেল মণিপুরে অশান্তির আগুন ধিক ধিক করে জ্বলছে। আজকে মণিপুরে না গিয়ে আপনি কলকাতায় এসছেন, ঠিক আছে কলকাতায় আসুন, কিন্তু মণিপুরেও যান, মণিপুরে একদম যাচ্ছেন না। আজকে আমরা প্রশ্ন করতে চাই যে আপনারা মণিপুরকে কি ভারতবর্ষের অঙ্গরাজ্য মনে করেন না? মণিপুরের মানুষ যারা আছে তারা কি ভারতবর্ষের মানুষ নয়? তাহলে মণিপুরে না গিয়ে আপনারা কলকাতা শহরে কি করছেন? আমার প্রশ্ন একটা, এটাই একটা প্রশ্ন। আর 4টে প্রশ্ন, আমরা টোটাল 5টা প্রশ্ন করেছি। ইন্দোনেশিয়া থেকে কয়লা আমদানি করছেন, ভারতবর্ষে কয়লা মজুদ আছে, তা সত্ত্বেও ইন্দোনেশিয়া থেকে কয়লা আমদানি বরাত পেয়েছে আদানি 3টে সেল কোম্পানিকে দিয়ে আজকে ইন্দোনেশিয়া থেকে কয়লা আমদানি করছে। এটা আমরা বলছি না, ফিনান্সিয়াল টাইমস বলছে। সেখানে ইন্দোনেশিয়া থেকে যে দামে কয়লা বেরোচ্ছে ভারতবর্ষে আস্তে আস্তে সেই কয়লার দাম দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে। আমরা প্রশ্ন করতে চাই, কয়লা লাগে একমাত্র বিদ্যুৎ তৈরি করার সময়। আজকে অমিত শাহ সরকার কি করছে? আমাদের এটাই 2 নম্বর। শুভেন্দু অধিকারীকে আমরা সবাই দেখলাম যে নারদা কেসে টাকা নিতে। আজকে সমস্ত নারদা যারা অভিযুক্ত তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, শুভেন্দুকে কেন গ্রেপ্তার করা হবে না? শুভেন্দু কি আইনের বাইরে না আইনের ঊর্ধ্বে? শুভেন্দু সবাই অ্যারেস্ট হবে একই মামলায়, শুভেন্দুকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে কেন? এটা আমাদের 3য় প্রশ্ন। আমাদের 4র্থ প্রশ্ন, নরেন্দ্র মোদী সরকার বলছে জিতলে ছত্তিশগড়ে 450 টাকা করে গ্যাস সিলিন্ডার দেবে, মধ্যপ্রদেশে জিতলে 450 টাকা করে গ্যাস সিলিন্ডার দেবে, আজকে রাজস্থানে জিতলে 450 টাকা করে গ্যাস সিলিন্ডার দেবে। তাহলে কলকাতা শহর বাংলা কেন বাদ যাবে? আপনি তো দেশের সরকার আপনাদের হাতে, নরেন্দ্র মোদী সরকার, অমিত শাহ সরকার, তাহলে সারা দেশে কেন 450 টাকা করে গ্যাস সিলিন্ডার হবে না? আমাদের এটাই 3 নম্বর। 4 নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের যে মেহুল চোকসি, ললিত মোদী, নীরব মোদী, বিজয় মালিয়ারা সব ভাগড়েরা টাকা, ভারতবর্ষের টাকা চুরি করে এরা পালিয়ে গেছে। আজকে মোদী অমিত শাহ আজকে কি করছেন? টাকা ফেরত নিয়ে আসতে পেরেছেন না এই চোরেদেরকে ডেকে নিয়ে আসতে, ধরে নিয়ে আসতে পেরেছেন? ধরতে পারেননি, টাকাও উদ্ধার হয়নি। তাহলে আপনি কি করছেন? দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, দেশের প্রধানমন্ত্রী আজকে পশ্চিমবাংলায় এসে ভাষণ দিবেন? আপনি এই কাজগুলো আগে করুন। আজকে মেহঙ্গাই চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, আজকে বেরোজগারি ভারতবর্ষে স্বাধীনতার পরে সবথেকে বেশি বেরোজগারি হচ্ছে এখন নরেন্দ্র মোদী আমলে। তাহলে আপনারা সেই প্রশ্নের উত্তর দেবেন না? আজকে এসে আপনারা পশ্চিমবাংলাকে অশান্ত করছেন। যেখানে অশান্তি সেখানে আপনারা যান, সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করুন। এটাই আমাদের তার জন্য আজকে আমাদের দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেসের প্রত্যেকে অবস্থান করে আজকে নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহর কাছে আমরা 5টা প্রশ্ন রাখছি। আপনারা যেভাবে বললেন মণিপুরের কথা, মণিপুরে যখন জ্বলছিল, মণিপুর শুরু থেকে এখনও জ্বলছে, তো মণিপুরে এইসব ঘটনা 2 মাস পরে নরেন্দ্র মোদী একটা স্পিচ দিয়েছিল 30 সেকেন্ডে এমন কিছু, তো এই ব্যাপারে আপনি কি বলবেন? নরেন্দ্র মোদী মণিপুর নিয়ে কিছুই করেনি। আজকে পার্লামেন্টে বক্তব্য রাখতে বলেছে রাহুল গান্ধী, পার্লামেন্টে মণিপুর নিয়ে একটা টু শব্দ করেনি, মণিপুরে যাননি। মণিপুরে কাউকে, আমাদের কেন্দ্রে কংগ্রেস ওখানে সরকার আছে, বিজেপির অ্যালায়েন্স সরকার আছে, সেখানে অ্যালায়েন্স সরকারকে বরখাস্ত করেনি, সেখানে রাজ্যপালকে বরখাস্ত করেনি। মণিপুরে পর্যন্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মণিপুরে যাওয়ার কথা, মণিপুরে যায়নি। আজকে মণিপুরে জাতি দাঙ্গা লেগেছে। আজকে কেন্দ্র সরকারের উচিত ছিল মণিপুরকে শান্ত করার জন্য সেখানে যাওয়া, কিন্তু সেখানে যায়নি।
আজকে শান্ত পশ্চিমবাংলায় শান্ত কলকাতা আজকে এসে অশান্তি করার চেষ্টা করছে। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। কিছু বলবেন আপনি এই প্রোটেস্টের সম্বন্ধে? आज बीजेपी के लोगों के पैर से ज़मीन निकल चुकी है। वो लोग अच्छी तरीके से इस बात को समझ रहे हैं। जिस तरीके से मणिपुर के लोगों ने बाइकाट किया है, आज वो कलकत्ता में आके यहाँ पे भी फिर एक जो यहाँ पे एक शांति है, एक सुकून है, चाहे रोज़गार हो नहीं हो, चाहे महंगाई हो, लेकिन कम से कम हिंदू मुसलमान सब यहाँ पर एक साथ मिलजुल के भाई की तरह रहते हैं। आज पश्चिम बंगाल को भी आज आके वो लोग आसान करने के लिए यहाँ पर अमित शाह यहाँ पर आ रहे हैं। आज वो लोग समझ रहे हैं अच्छी तरीके से कि जो भी अभी 5 राज्यों में जो इलेक्शन हुआ है, उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी है। वो वहाँ पे कुछ भी बोलने के लायक नहीं रहे, नौजवानों को मैसेज नहीं दे पाए, महिलाओं को मैसेज नहीं दे पाए, हर तरीके से वो फेलियर रहे। और आज यही वजह है कि वो लोग आज कांग्रेस के पैर में पैर मिलाकर, पैर पे पैर रखकर चलना चाह रहे हैं। कांग्रेस ने जब वहाँ पर कहा कि हम सिलेंडर वहाँ पर 500 देंगे, तो आज उनकी मजबूरी हो गई इस बात को बयान देने के लिए कि हम 450 में देंगे। आखिर वो लोग पूरे सेंट्रल में वो लोग हुकूमत करते हैं, उनकी सरकार है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी पड़ी कि जहाँ पर इलेक्शन हो रहा है वहीं पर उनको 450 में देना पड़ रहा है? और हिंदुस्तान के लोगों ने क्या उनका बिगाड़ा है जहाँ पर और उनका राज है? यूपी इतना बड़ा राज्य है, वहाँ पर योगी वहाँ पर बुलडोज़र बाबा कहलाते हैं, लेकिन आवाम के लिए कुछ भी नहीं करते। आवाम को राहत देने का उन लोगों के पास में कोई नहीं। सिर्फ हिंदुस्तान में वो लोग एक फ़िरका परस्त ताकत के तौर पर हिंदू मुसलमान नफरत की राजनीति करके वो लोग यहाँ पर अपना इक़्तिदार चमकाना चाहते हैं। और जिस चीज़ को अब पब्लिक ने समझ लिया है, उनके झूठ को समझ लिया है, उनकी मक्कारी को समझ लिया है, उनके जुमलाबाजी को समझ लिया है कि जितने भी वादा उन लोगों ने किए, जितनी भी बातें उन लोगों ने कही, चाहे वो 15 लाख की बात हो, चाहे वो 2 करोड़ रोज़गार की बात हो, चाहे महंगाई कम करने की बात हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, हर मकाम पे वो लोग फेलियर रहे हैं। कहीं पर भी वो लोग पब्लिक के आवाम के सामने में आज जहाँ जहाँ भी इलेक्शन हो रहा है, आप लोग यूट्यूब के जरिया, गोदी मीडिया तो उनके गोद में बैठी हुई है, लेकिन आज सोशल मीडिया यूट्यूब वालों का हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि वो लोग हर एक जगह पर पहुंचकर एक सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं। और हिंदुस्तान की सच्चाई यही हो गई है कि अवाम के मसाइल पे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं पे राम मंदिर की बात करते हैं, कहीं पे कृष्णा मंदिर की बात करते हैं, कहीं पे और मंदिर की बात करते हैं। सिर्फ मंदिर मस्जिद की राजनीति, हिंदू मुसलमान की राजनीति, एक हिंदुस्तान पाकिस्तान की राजनीति, और इसके अलावा कुछ नहीं। आज उनकी इतनी बड़ी मजबूरी हो गई इस बात को नफरत करते करते बीजेपी इस कदर नफरत में आ गए कि जो हमारी सरकार का मामला था कि हम लोग फ़िलिस्तीन के मजलूमों के साथ हैं, वहाँ के मासूमों के साथ में, आज वो लोग इजराइल के साथ में खड़े होते दिखाई दे रहे थे। तो उनके पास में सिर्फ यही एक राजनीति है। लेकिन अब आप हिंदुस्तान का आवाम समझ चुके हैं, इसीलिए 5 राज्यों में वहाँ पर कांग्रेस अच्छे सीटों से अच्छे मात्रा में वहाँ पर कामयाब होनी चाह रही है। और 2024 में भी ये बुरी तरीके से नाकाम होंगे, क्योंकि आवाम अब नाकार दिया है कि हम नफरत की राजनीति हम नहीं चाहते, हम एक ऐसी राजनीति चाहते हैं। क्योंकि आज हिंदुस्तान की आबादी को 72 साल हो गए, लेकिन ये हमारा नरेंद्र मोदी का 10 साल का वक्त ये हमारा बेकार चला गया और हिंदुस्तान पीछे चला गया। तो पढ़ा लिखा नौजवान जो यहाँ का अच्छा तबका सोचने वाला है, वो लोग कभी भी नहीं चाहेगा कि अमित शाह बंगाल में आए और आकर यहाँ पर वातावरण को ख़राब करे। क्योंकि लोग जान रहे हैं कि इनको जहाँ पर जाना चाहिए था मणिपुर में, वहाँ के लोगों ने बाइकाट किया, वहाँ पे इनकी रूलिंग पार्टी ने इनको कह दिया कि हम स्टेज शेयर नहीं करेंगे। तो आज ये बंगाल में आए, यहाँ पर आकर आप लोग देखना कि उनके पास में और बोलने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ एक ही बात कि हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो आज कांग्रेस के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं अमित शाह को गो बैक करने के लिए और उनको ये बात बताने के लिए कि कांग्रेस भी एक विकल्प है जो तुम्हें हिंदुस्तान से भारत छोड़ो का जो नारा जो आज दिया राहुल गांधी ने, आज लोगों ने सोचा था कि ये भारत जोड़ो की कौन सी बात है, भारत तो पहले भी जुड़ा हुआ है। लेकिन जब राहुल गांधी रास्ते पर निकले और हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में जब हमारी माँ और बहनें, बुजुर्ग, बूढ़े, बच्चे जब उनके पीछे में एक पागल की तरह एक निकले, तो लोगों को समझ में आ गया कि हाँ वाकई भारत एक टूटने की कगार पे था, जिसको राहुल गांधी ने निकलकर भारत जोड़ो का जो ऐलान किया है, लोग इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और उनके साथ में कर रहे हैं। आज यही वजह है कि जो लोग कल तक राहुल गांधी को आज पप्पू पप्पू कहने के लिए, आज साबित करने के लिए करोड़ों करोड़ नहीं अरबों रुपया उन लोगों ने खर्चा किया, लेकिन ऊपर वाले की ताकत, ऊपर वाले की मार, लोगों की दुआएं हैं कि आज उनको पनौती साबित करने के लिए कुछ भी रुपया खर्चा नहीं करना पड़ा। पूरा हिंदुस्तान आज पनौती ही कर रहा है और वाकई हिंदुस्तान के लिए वो चक पनौती साबित हुआ है कि हमारा आबादी का जो एक गोल्डन पीरियड था, जो 10 साल था, जो आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ रहा था कामयाबी की तरफ में, आज 10 साल पीछे की तरफ में लौट चुका है। चैनल कितने नंबर द लोकल जर्नल।
तो जैसा कि आपने देखा यहाँ कांग्रेस कमेटी की तरफ से इस तरह से जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है और आपको मैंने बताया कि इन लोगों का मुद्दा क्या है, टॉपिक्स मैंने बताई कि ये सारा जो क्वेश्चंस है ये कांग्रेस कमेटी की तरफ से की जा रही है, अमित शाह को जो किया जा रहा है सारा क्वेश्चन, और किस तरह से जो है आपने भी सुना कि LPG के बारे में, कि दामों के बारे में, कि 5 इलेक्शन हो रही 5 स्टेट में, तो आखिर वहाँ क्यों बंगाल की जनता क्यों नहीं ये लाभ उपभोग कर सकती है। उसके अलावा और भी कितनी सारी बातें जो है उन सारे हम लोग को जानने को मिली। तो ये प्रोटेस्ट था, यहाँ आपको बता दो एक बार फिर, हम लोग अभी मौजूद है संतोष मुखर्जी रोड, ठीक इंदिरा गांधी के ठीक मूर्ति के सामने, और यहाँ जो है कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो है रैली और प्रोटेस्ट चल रही थी। और ऐसे ही और भी खबरों के लिए देखते रहे द लोकल जर्नलिस्ट। मैं आपके साथ नौशबा खान, बहुत बहुत धन्यवाद।